السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر بعد شہر کا ایک دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے۔ تختے کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ تختہ آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کا اوپر والا سرا خندق پر ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا، اس کی سز دز بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ اس کا سوار بلا شک و شبہ حاکم سابات شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کچی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے، سوار بھی۔ ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھی وہی چھوڑ گئے تھے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے نہ ان کا مذاق اڑایا، فپتی کسی نہ فتح کا نعرہ لگایا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر ایک سوار ایک طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ جولائی 600 کا ایک دن تھا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے شہر کے عمرہ اور روسا دست بدست کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و گل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی: وہ آ گئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں، بھاگو، چھپ جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے۔ انبار کے عمرہ وغیرہ نے انہیں توپے پیش کیے۔ شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عمرہ سے کہا، انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں۔ ہم جزیہ ضرور لیں گے، لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے۔ ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہم صرف ان کے مال اموال کو اپنے قبضے میں لے لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ، اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ہیں، ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہاں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گیدڑ اتر رہے تھے۔ وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا۔ وہ تو محل تھا۔ دنیا کی کون سی آسائش اور زیبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی؟ خالد رضی اللہ عنہ جو زمین پر سونے کے عادی تھے، حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی۔ اس میں سونے
और हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। इर्द गिर्द के कबीलों के सरदार इताअत कबूल करने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिजिया की रकम मुकर्रर करके इसकी वसूली का हुक्म दिया। इस दौरान जासूसों ने आकर बताया कि फारस की फौज ऐनुल तमर में इकट्ठी हो गई है और अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मदाइन में आतिश परस्त शहनशाहियत का महल उसी तरह खड़ा था जिस तरह अपने शहनशाहों की जिंदगी में खड़ा रहता था। यह किसरा का वो महल था जिसे जंगी ताकत की अलामत समझा जाता था। इसके बाहर वाले दरवाजे के दाएं और बाएं दो बबर शेर बैठे रहते थे। ये किसरा की हैबत और दहशत की अलामत थे, लेकिन ये गोश्त पोश के नहीं, पत्थरों के तरासे हुए मुजस्समे थे। इन मुजस्समों और महल के दरमियान एक मीनार खड़ा था जो ऊपर से गोल और मीनार की गोलाई से ज्यादा बड़ा था। उस जगह अलाव हर वक्त दहकता रहता था। जब यह मीनार तामीर हुआ था, उसके ऊपर पुरोहितों ने यह आग जलाई थी। कई नस्लें पैदा हुई और अगली नस्लों को जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गई। ये अलाव दहकता रहा। इससे उठता हुआ धुआं महल की फजा में यूं मंडलाता रहता था जैसे दरतूस ने इस महल को अपनी पनाह में ले रखा हो। अलाव अब भी दहक रहा था। उसका धुआं अब भी किसरा के महल की फजा में मंडला रहा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे ये धुआं महल को पनाह में लेने की बजाय खुद पनाह ढूंढ रहा हो। महल जो कभी दूसरों के लिए हैबत का निशाना था, अब खुद उस पर हैबत तारी थी। इसकी शान और शौकत पहले जैसी ही लगती थी, जाह व जलाल भी पहले जैसा था, मगर इसके मकीन अब साफ तौर पर महसूस करने लगे थे कि इस महल पर आसेब का असर हो गया है। मौत की दबी दबी हंसी की सिस सिस दिन रात सुनाई देती थी। एक गैबी हाथ किसरा के जवाल की दास्तान उसके खानदान के खून से लिख रहा था। कहाँ वो वक्त के इस तख्त से दूसरों की मौत के परवाने जारी होते थे, कहाँ ये वक्त के उर्द शेर के मरने के बाद इस तख्त पर जो बैठता था वो पुर इसरार तौर पर कत्ल हो जाता था। 2-4 सालार थे जो फारस की लरसती डोलती हुई इमारत को कुछ देर और थामे रखने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नौखेज हसीनाएं अब भी इस महल में मौजूद थी, मगर रक्स की अदाएं नहीं थी। साज खामोश थे, नगमे चुप थे। शराब की बू पहले की तरह मौजूद थी, मगर इसमें खून की बू शामिल हो गई थी। पहले यहाँ ऐश व इशरत के लिए शराब पी जाती थी, अब अपने आप को फरेब देने और तल्ख हकाइक से फरार की खातिर जाम पर जाम चढ़ाए जा रहे थे। अब मदाइन का महल तख्त व ताज के हुसूल का मैदान जंग बन गया था। दर पर्दा जोड़ तोड़ हो रहे थे। इसी महल से खालिद और उनकी सिपाह पर तंज के ये तीर चले थे कि अरब के बद्दू और लुटेरों को फारस की शहनशाही में कदम रखने की जरूरत कैसे हुई। वो कभी वापस न जाने के लिए आए हैं, इन्हें मौत यहां ले आई है। मगर अब फारसियों को खुद अपनी शहनशाही में कदम जमाए रखने की जरूरत नहीं हो रही थी। दूसरों पर दहशत तारी करने वाले तख्त व ताज पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की और मदीने के मुजाहिदीन की दहशत तारी हो गई थी। मदाइन में अब शिकस्त और पसपाई के सिवा कोई खबर नहीं आती थी। जुलाई 633 ईस्वी के एक रोज मदाइन में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई कासिद नहीं बल्कि हाकिम साबाद शेरजाद था और उसके साथ उसकी शिकस्त खुर्दा फौज बेशुमार सिपाही थे। इनका इस्तकबाल किसरा के नामूर सालार बहमन जाजविया ने किया। इनकी हालत देखकर ही वो जान गया कि बहुत बुरी शिकस्त खाकर आए हैं। शेरजाद
बहमन जाजूया ने कहा, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं, मैं तुमसे क्या पूछूं? तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। शेरजाद ने थकी हारी आवाज में कहा, तुम भी तो उनसे लड़े थे, क्या तुम पसपा नहीं हुए थे? क्या तुम किला बंद नहीं थे? बहमन जाजुया ने कहा, किले के इर्द गिर्द खंदक थी, मुसलमान उड़ तो नहीं सकते, इतनी चौड़ी खंदक उन्होंने कैसे उबूर कर ली थी? शेरजाद ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उसे किस तरह शिकस्त दी है। मेरे सालार नाअहल और बुजदिल निकले, शेरजाद ने कहा, और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था कि ये जबरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं कि लड़ाई होती क्या है। तुम शायद ये नहीं देख रहे कि तुम पसपा होकर मुसलमानों को अपने पीछे ला रहे हो, बहमन जाजविया ने कहा, और तुम्हें यह मालूम नहीं कि मदाइन में क्या हो रहा है। शाही खानदान तख्त की विरासत पर आपस में लहूलुहान हो रहा है। फारस के आबरू के मुहाफिज हम 2-4 सालार रह गए हैं, और जब तख्त सालारों की तहवील में आ जाएगा तो वो शाही खानदान की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। शेरजाद ने कहा, और राजदारी के लहजे में कहने लगा, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि फारस की शहंशाही का जवाल शुरू हो चुका है? क्या हमारा सूरज डूब नहीं रहा? शेरजाद, बहमन जाजुया ने कहा, उस हलफ को न भूले जो हमने जरतुश्त के नाम पर उठाया था कि हम फारस को दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो यहां चले आए हो। कहाँ जाता? ऐनुल तमर, बहमन जाजिविया ने कहा। ऐमुल ऐनुल तमर अभी महफूज अड्डा है। किलेदार महरा बिन बहराम लड़ना लड़ाना जानता है। इत्तिला मिली है कि उसने चंद एक बदवी कबीलों को भी ऐनुल तमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने उधर का रुख किया है तो ऐसे ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए हो। उनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगी। वो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान है। उनमें पहले वाला दमकम नहीं रहा है। लेकिन मैंने उन्हें ताजा दम पाया है, शेरजाद ने कहा। मैंने इनमें थकन और कम हिम्मती के कोई आसार नहीं देखे। और बहमन, मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसी बेजिगरी से वही लड़ सकता है जिसे कोई नशा पी रखा हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका अकीदा सही है, बहमन जाजविया ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन पर अपने अकीदे का नशा तारी है। हम अपनी सिपा में ये जहनी कैफियत पैदा नहीं कर सके। तुम कह रहे थे कि मुझे ऐनुल तमर चले जाना चाहिए था, शेरजाद ने कहा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपा को मुनज्जम कर ले, फिर मुसलमानों पर जवाबी हमले की तैयारी करे? अब तुम्हारा ऐनुल तमर जाना ठीक भी नहीं, बहमन जाजिविया ने कहा। हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। ऐनुल तमर अंबार के जुनूब में फुरात के मशरिकी किनारे से कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। उस जमाने में इस शहर का तिजारती राब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी था। किला मजबूत और शानदार था। वहां का हाकिम और किलेदार एक फारस सालार महरा बिन बहराम चौबेन था। महरा देख रहा था कि मुसलमान फारस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं, और जो किला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घरौंदा साबित होता है। उसने तहैया कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फारस की तारीख में नाम पैदा करेगा। उसने ये भी देख लिया था कि फारस की फौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर
मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। इस खतरे को खत्म करने और अपनी नफरी बढ़ाने के लिए उसने ईसाई और दिगर अकीदों के कबीलों को ऐनुल तमर में इकट्ठा कर लिया था। इनमें बनी तगलब, नम्र और अयात के कबीले खास तौर पर काबिल जिक्र थे। ये सब अरब के बद्दू थे। इनके सरदार अका बिन अका और हजील थे। ये दोनों उस वक्त के माने हुए जंगजू थे। ये कबीले किसरा की रियाया थे। एक तो वो खुद अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे, दूसरे ये कि महरा बिन बहराम ने उन्हें बहुत ज्यादा इनाम और मुराआत देने का वादा किया था। और फारस से वफादारी की तीसरी वजह यह थी कि इन कबीलों के सरदारों और दिगर बड़ों को एहसास था कि मुसलमान सिर्फ मुल्क फतह करने नहीं आए, बल्कि वो उनके अकीदों पर हमला करने आए हैं और उन पर अपना अकीदा मुसल्लत करेंगे। उस रात ऐनुल तमर में बहुत बड़ी जियाफत दी गई। यह जश्न का समा था। ईरान की बड़ी हसीन नाचने और गाने वालियां अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। यह जियाफत इन बदवी कबीलों के सरदारों और सरकर्दा अफराद के एजाज में दी गई थी। शराब पानी की तरह बह रही थी। इन बद्दुओं ने ऐसी जियाफत और ऐसी अय्याशी कभी ख्वाब में देखी भी नहीं थी। बड़ी खूबसूरत और जवान औरतें इन्हें शराब पिला रही थी और उनके साथ फहश हरकतें भी कर रही थी। मोरिखों ने लिखा है कि इस कैफियत में जब उन पर शराब और औरत का नशा तारी था, बदवी कबीलों के एक सरदार अका बिन अका ने महरा बिन बहराम से कहा कि वो अपनी फौज को पीछे रखे और बदवी कबीले आगे जाकर मुसलमानों को ऐनुल तमर से दूर जाकर रोकेंगे। अगर तुम ऐसा ही बेहतर समझते हो तो मैं एतराज नहीं करूंगा। महरान बिन बहराम ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे कबीले हमारी फौज के बगैर नहीं लड़ सकेंगे। हम अरबी हैं, अका ने कहा। अरबों से लड़ना सिर्फ हम जानते हैं। अरब के इन मुसलमानों से हमें लड़ने दो। फारसियों ने इनके मुकाबले में आकर देख लिया है। मशहूर मौर्रिक तिबरी ने महरा और अका की यह गुफ्तगू उन्हीं के अल्फाज में अपनी तारीख में शामिल की है। मैं तस्लीम करता हूं, महरान बिन बहराम ने कहा। तुम्हारी बहादुरी को मैं तस्लीम करता हूं अका। जिस तरह हम अज़मियों के खिलाफ लड़ने के माहिर हैं, इसी तरह तुम अरबों के खिलाफ लड़ने की महारत रखते हो। तुम इन अरबी मुसलमानों को काट फेंकने के लिए आगे चले जाओ। मेरी फौज तुम्हारे करीब ही कहीं मौजूद होगी। जो ही जरूरत पड़ी हम तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। रात गुजर गई। सुबह फारस की फौज के 2 सालार महरान बिन बहराम के पास गए। रात को हमने आपकी और आका की बातचीत में दखल देना मुनासिब न समझा। एक सालार ने कहा, हमने बोलने की जरूरत इसलिए भी न समझी कि रात को यह बातचीत नशे की हालत में हो रही थी। मैं पूरी तरह होश में था। महरान ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। आपने इन बदवी कबीलों को जो अहमियत दी है, यह हमारे लिए अच्छी नहीं। सालार ने कहा, क्यों अच्छी नहीं? इससे इन कबीलों को यह तासुर मिला है कि हम मुसलमानों से डरते हैं। सालार ने जवाब दिया, या ये कि हम कमजोर हैं। ये लोग इतने अहमियत के काबिल नहीं। अगर बदवी कबीलों ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी, दूसरे सालार ने कहा, तो कहा जाएगा कि ये फतह इन कबीलों के है, और अगर ये न होते तो हम एक और शिकस्त दो चार हो जाते। मैंने इन्हें जो अहमियत दे दी है, यह आखिर तुम्हें मिलेगी। महरान ने कहा, क्या तुम तस्लीम नहीं करते कि हम पर हमला करने वो शख्स आ रहा है जिसने हमारे नामूर सालारों को मौत के घाट उतार दिया है, और उस खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फारस की शहंशाही की बुनियाद हिला डाली है। मैं इस एतराफ से नहीं शर्माऊंगा कि तुम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचकर
इन बदवी कबीलों को आगे जाने की इजाजत दी है। अगर उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो ये तुम्हारी फतह होगी। ये बदवी कबीले हमारी रियाया है। अगर ये मुसलमानों को शिकस्त न दे सके और पसपा हो गए तो हम मुसलमानों पर इस हालत में हमला करेंगे कि वो थककर चूर हो चुके होंगे और हमारी फौज ताजा दम होगी। दोनों सालारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर रौनक आ गई थी। अपने हाकिम की ये चाल इन्हें बहुत पसंद आई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन का लश्कर को लेकर ऐनुल तमर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दरियाए फुरात अबूर किया और बड़ी तेज रफ्तार से दरिया के किनारे पेशकदमी जारी रखी। उन्होंने देखभाल के लिए जो आदमी आगे भेज रखे थे वो अपनी इत्तिलाए कासिदों के जरिए भेज रहे थे। अंबार में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने एक नायाब सालार जबरकान बिन बद्र को छोड़ आए थे। ऐनुल तमर 10 मील दूर रह गया था जब जासूस और देखभाल करने वाले दूसरे आदमी पीछे आ गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तिला दी कि जरा आगे एक बहुत बड़ा लश्कर पड़ाव डाले हुए है और ये लश्कर फारस का नहीं बल्कि बदवी कबीलों का है। इस लश्कर के साराले आला अका बिन अबी अका है और उसका नायब हजील है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को रोक लिया और खुद आगे देखने गए। उन्होंने छुपकर देखा। इन्हें किसरा की फौज कहीं भी नजर न आई। यह लश्कर बदवी कबीलों का था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर अभी कूच की तरतीब में था जो दरअसल तरतीब नहीं थी। मंजिल अभी 10 मील दूर थी। अभी लश्कर काफिले की सूरत चला आ रहा था। ऐनुल तमर पहुंचकर शहर को मुहासरे में लेना था, लेकिन रास्ते में एक इंसानी दीवार आ गई जो मुसलमानों के लिए गैर मुतवक्के थी। मोरिखों ने इन कबीलों की तादाद नहीं लिखी सिवाय इसके कि वो तादाद में मदीने के मुजाहिदीन से खासे ज्यादा थे। ऐनुल तमर की अपनी फौज इस तादाद के अलावा थी। इस तरह मुसलमानों का मुकाबला कम अज कम 3 गुना ताकतवर दुश्मन से था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह खुद कल्ब में रहे और अपने दोनों तजुर्बाकार सालारों आसिम बिन अम्र और ऐदी बिन हातिम को दाएं और बाएं पहलू में रखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सालारों को अपने पास बुलाया। हमारी तरतीब वही है जो आमने सामने के हर मार्के में हुआ करती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों से कहा, लेकिन लड़ने का तरीका मुख्तलिफ होगा। अब कल्प से हमला नहीं होगा। मेरा इशारा मिलते ही दोनों पहलू दुश्मन के पहलू पर हल्ला बोल दे और वहां दुश्मन को पूरी तरह उलझा ले। थोड़ी देर बाद इस तरह पीछे हटे कि दुश्मन को यह तासुर मिले कि तुम पसपा हो रहे हो। थोड़ा सा पीछे आकर फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हटो। इस तरह दुश्मन के पहलुओं को आपस में उलझाए रखना कि अपने कल्ब की इन्हें होश न रहे। मैं सीधा दुश्मन के कल्ब पर हमला करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों इस कोशिश में रहना कि दुश्मन के पहलुओं से उसके कल्ब को मदद न मिल सके। वलीद के बेटे, दुश्मन की तरफ से ललकार सुनाई दी। आंखें खोल, देख तेरी मौत तुझे किसके सामने ले आई है। मैं अका हूं, अका बिन अबी अका। वलीद का बेटा देख चुका है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े पर सवार होकर और रकाबों में खड़े होकर ललकार कर जवाब दिया, तेरी मखरू आवाज सुने बगैर देख लिया है। क्या किसरा के सालारों ने महल में नाचना और गाना शुरू कर दिया है कि उनकी लड़ाई तुम लड़ने आ गए हो। इब्ने वलीद, अका की ललकार बुलंद हुई, क्या तू जिंदा वापस जाने का ख्वाहिशमंद नहीं? मैं जिंदा वापस जाऊंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गला फाड़ कर कहा, खुदा की कसम, तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करके जाऊंगा।
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सालारों की तरफ मुतवज्जा हुए। रब्बे काबा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं आका को जिंदा पकड़ूंगा, फिर इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला दो फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने सिया पहाड़ की मानिंद खड़ी है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर या कहीं रूपोश है, न जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर देगी। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मोरिक लिखते हैं कि मदीने के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कूच कर रहे थे, और उनकी तादाद भी कम थी। ऐनुल तमर में दुश्मन को ललकार कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बज़ाहिर गलती कर रहे थे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर संजीदगी जरूर थी। परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। इन्हें दुश्मन ललकार रहा था। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।